Good morning, students. Welcome to the new chapter, Chemical Kinetics. This is the fourth chapter of the class 12th. The maximum marks of this chapter is maximum marks is equal to 5. Let's start now. First of all, let's take a small look at the meaning of the chemical kinetics. Chemical means chemical substances. Kinetics means the forces of attraction between the constituent particles of the chemicals which take part in the chemical reactions, and as a result of it, the chemical reaction proceeds so that the reactants are converted into product. So that the speed with which the reactants are converted into product. This is kinetics. Chemical kinetics. The statement of the chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the study of rate. Rate means speed of the reaction. Speed with which the reactants are converted into product. Speed of the reaction, sequence of steps involved in a reactions. वो sequence of steps means mechanism of the reaction, and the factors which affect the rate of reaction is called chemical kinetics. The main thing in the chemical kinetics is rate of reactions, and today's my topic is rate of reactions. Rate of reaction. Rate means the speed. What is the meaning of rate? Rate means speed. Speed with which the reactants are converted into product. That is the rate of reactions. But on the basis of rate of a reaction, speed of the reactions, the chemical reactions are also classified into 3 types. Number 1. Types of reactions on the basis of rate of reaction. Rate or speed of reactions. Number 1. Very fast reactions. Very fast reactions. These are the reactions whose speed or the rate is a fraction of seconds. And in these reactions, the reactants are converted into products within a fraction of seconds. And these are the fast reactions. These reactions occur in a fraction of seconds. That is within 10 raised power minus 12 to 10 raised power minus 16 seconds. Just imagine how fast these reactions are. For example, the ionic reactions. These reactions are very fast. Yes. Like reactions of silver nitrate with sodium chloride. Like this. It forms silver chloride plus NaNO3. These are the ionic reactions. Ions involved in this reaction. These are very fast reactions. Others like neutralization of acid and base.
acids and bases. Like HCl plus NaOH, it forms salt, NaCl plus water. These are very fast reactions, and these reactions occurs within a fraction of seconds. And the speed of these reactions or the rate of these reactions cannot be determined. हम इन reactions के का rate नहीं निकाल सकते. तो these are the fast reactions. Second type of reactions are very slow reactions. इनको आपने नोट कर लेना फटाफट पास करके. अब दूसरे टाइप की आ रही है, वो है स्लो रिएक्शंस. Slow reactions. These reactions are very slow, and this reaction takes even month or year for their completions. For example, rusting of iron, green deposition of green coating on the terminal of battery. Terminals of battery. Like formation of an image on the eye retina. So these are very slow reactions. Just rusting of iron, green coating on the terminal of battery, etc. तो ये जो रिएक्शंस होते हैं इनको महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, और इनका पता नहीं लगता कि कब रिएक्शन हुई कब नहीं. तो ये क्या होती है, ये बड़ी आपकी स्लो रिएक्शंस होते हैं. एंड द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस कैन आल्सो नॉट बी डिटरमाइंड. इनका भी हम नहीं निकाल सकते. तो अब आ रही थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस वो आ रही है आपकी मॉडरेट रिएक्शंस. मॉडरेट रिएक्शंस. मॉडरेट रिएक्शंस तीसरे टाइप की आ रही है आपके पास मॉडरेट रिएक्शंस. तो दीज आर द रिएक्शंस हुज रेट इज नॉट वेरी फास्ट नॉट वेरी वेरी स्लो. ना तो बहुत ज्यादा फास्ट है और ना ही बहुत ज्यादा स्लो है. तो these are the moderate reactions and the rate of these reaction can be determined. इन्हीं का हम rate of reaction निकाल सकते हैं. Moderate reactions. Moderate reaction. The reactions whose rate is intermediate between these two. The reactions whose rate means speed, the reactions whose rate or speed is not very fast and not very slow are called moderate reactions. Moderate reactions. The rate of these reaction can be determined. The rate of these reactions can be determined. For example, these reactions like decomposition of phosphorus pentachloride into phosphorus trichloride plus chlorine gases involved. Like nitrogen gas react with hydrogen gas to form ammonia. These reactions, the rate of these reactions is moderate and the rate of these reactions can be determined. Now we will discuss the rate of reaction on the basis of these type of reactions, the moderate reactions. Let's start now the rate of reaction. चले आज का जो मेन टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन. मेरा जो टॉपिक का नेम था वो था रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन.
अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करूंगा। आपको जो बोर्ड में एग्जाम आता है वो इसी के ऊपर आएगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड नीचे क्या दिया होगा, कोई न्यूमेरिकल दिया होगा आपको। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, जो न्यूमेरिकल आपको आगे जाके आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है, जैसे JEE में, नीट में, IITs में, तो ये इसके ऊपर वो न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो अभी मैं बोले लेता हूँ, आज का मेरा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक वो है रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक है मेरा आज। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन रेट मीन्स स्पीड। आपने देखा होगा किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं और प्रोडक्ट आगे जाके बनते हैं। तो सारी के सारी रिएक्टेंट कंज्यूम भी नहीं होते, थोड़ा सा बच जाता है। चलो जितना भी होता है, तो अब आज हम वही चीज देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। स्पीड विद विच द रिएक्शंस प्रोसीड, स्पीड विद विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो आइए पहले रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपकी रिएक्टेंट्स होती हैं उनमें चेंज आती है। चेंज क्या आएगी, वो डिक्रीज होंगी, जितनी ली होगी पहले से कम होना शुरू हो जाएगी। और आपकी प्रोडक्ट में भी चेंज आएगी। उसमें क्या था, स्टार्ट में प्रोडक्ट तो थी नहीं, तो रिएक्टेंट से वो क्या, जब कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपकी बढ़ती जाती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनता है द रेट, ऐसे करेंगे, द चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइंड एज द चेंज in the concentration of reactants, the change in the concentration of reactants or products or change in the concentration of product। मैंने लिखा था change in the concentration of reactants or products per unit time is called rate of reaction। जिससे हम यहां पर लिखेंगे रेट। रेट किसके इक्वल होगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, दिस इज द साइन ऑफ चेंज, C फॉर कंसंट्रेशन, पर यूनिट टाइम इंटरवल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं वेयर C क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। डेल्टा T क्या है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कितने समय में, कितना टाइम उसको लगा, तो वो थे आपका टाइम इंटरवल। और डेल्टा C, डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज, डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, चेंज, चेंज। तो C फॉर कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने लिखा ओनली रेट, रेट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो पूरा भी आप लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन भी कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ये थे रेट ऑफ रिएक्शंस। अब मैं लिखता हूं यूनिट, पहले देख लीजिए, यूनिट फॉर कंसंट्रेशन, यूनिट फॉर कंसंट्रेशन ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा,
ये था मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। अब आता है यूनिट फॉर रेट, यूनिट फॉर रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या आएगा, ऊपर क्या है कंसेंट्रेशन, नीचे क्या है टाइम। कंसेंट्रेशन का यूनिट था मोल लीटर इनवर्स, टाइम का यूनिट हमने जहां लेना सेकंड्स, मिनट्स में होता लेकिन यहां पर सेकंड्स, सेकंड्स। तो ये बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज द यूनिट फॉर कंसेंट्रेशन। चलिए अब हम आगे जाकर वो थोड़ा सा ले लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आपने नोट कर लेना है, आगे मैं इसको थोड़ा चेंज कर, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं, एक कोई रिएक्शन ले लेते हैं, कंसिडर अ रिएक्शन। जनरल रिएक्शन, जहां पर मैं ले लेता हूं आर रिएक्टेंट्स, से क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। इस रिएक्टेंट्स की जगह मैं ले लेता हूं आर, आर फॉर रिएक्टेंट्स एंड पी फॉर प्रोडक्ट्स, आर फॉर रिएक्टेंट्स, पी फॉर प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड एंड द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो इसमें क्या होता है, आपने इसमें दिखाना क्या है, जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन दिखानी है मोल पर लीटर में। तो हम कहेंगे किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कंज्यूम्ड एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। वो बन जाती है, ये खत्म हो जाती है, ये कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे मैं ले लेता हूं कि ये स्टार्ट करता हूं, मान लो जहां पर मेरे पास आ रहा है इनिशियल, थोड़ा सा ध्यान देना, इनिशियल होता फर्स्ट, इस समय इनिशियल का है, मैं ले लेता हूं मेरा टाइम t1 ले लेता हूं, जो स्मॉल t1 लेता हूं, इज इक्वल टू मैं 0 सेकंड्स लेता हूं। इसकी कंसंट्रेशन मैं मान के चल लेता हूं C1 है। अब आया जब इसका ये थे, इसकी कंसंट्रेशन C1 कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, वो हम ले लेते हैं। और इस समय मान लो इसकी कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं रिएक्टेंट की, कोई भी मान के चलते हैं 4 मोल पर लीटर इनवर्स। और इस समय जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपकी प्रोडक्ट आ रही है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना कि जो प्रोडक्ट आ रही है आपकी, इसकी का जो कंसंट्रेशन है C1 वो 0 है। क्यों? टाइम 0, अभी आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई जी, आपने 4 मोल ले लिए रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट आपके पास अभी नहीं बनेंगे। फाइनल, अब मैं फाइनल लूंगा, ये इनिशियल स्टेट थे, ये फाइनल थे। जब इसको मैं लिखूंगा T2, मान लो ये 0 सेकंड्स के बाद कुछ सेकंड्स हो जाते हैं, 10 मे बी 20 30 50 60 कुछ, मैंने लिखा 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। इसकी जो कंसंट्रेशन होगी C2 वो पहले से कम हो जाएगी। पहले इसकी थी 4 मोल पर लीटर थी, अब वो पहले से कम हो जाती है। मान लो वो रह जाती है आपकी, इसमें से कुछ मोल कम हो जाते हैं, वो आपके 4 में से मान लो आपके 1.5 मोल ही कम हो गए। तो वो इस समय C2 जो प्रोडक्ट बनेगी, जहां से 1.5 मोल कम हो रहे हैं,
कितने हो रहे हैं 1.5 मोल। या आप ऐसा करो, पॉइंट में नहीं लिखना तो आप ऐसा करो, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप 5 मोल कर लो, तो ये आपके 5 - 2 कम हो गए, तो ये आपके 2 मोल इधर चले गए, 2 मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन हो गई। इसकी कम हो रही है, स्टार्ट में आपने लिए थे 5 मोल, अब इसमें 5 में से 2 कम हो गए, रह गए आप कितने, यहां रह जाएंगे आपके 3 मोल। उसके पहले 0 था, लेकिन उसके आप 0 से कितने हो गए 2 मोल। आगे यूं चलेंगे, हो सकता है ये 2 मोल रह जाए, ये 3 हो जाए, और आगे चलेंगे ये हो सकता है 1 रह जाए, वो 4 हो जाए। तो ये इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, किसकी, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है इस रिएक्शन में। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसे होता है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा था वो था चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो अब हम इसमें दोनों केसेस लेंगे कि इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा आपने, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आप रिएक्टेंट्स लेते हो तब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, वो क्या होगा, वो होगा डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों, रिएक्टेंट कितनी कम हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कम हो रही है, वो कितनी डिक्रीज हो रही है पर यूनिट टाइम। रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिक्रीज को ऐसे लिख सकता हूं, जैसे ये देखिए, ये मैंने लिखा डिक्रीज, आगे नेगेटिव से दिखाएंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। वेयर सी क्या है, सी है कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। सी क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन थी। डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल, चेंज इन कंसंट्रेशन। और नेगेटिव साइन क्यों दिखाया, जहां पर दिखाया कम हो रही है, डिक्रीज को हम माइनस दिखा रहे हैं, जहां पर नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। लेकिन यह है कि बाद में जब आपने इसकी वैल्यू लिखनी हो कहीं भी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वहां पर नेगेटिव नहीं लिखते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ जो साइन दिखाया गया, ये साइन दिखा रहा है कि जहां पर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट चल रहा है और डिक्रीज हो रही है, इसलिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर यूनिट टाइम। तो मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, यहां पर टाइम इंटरवल। ओके, तो रेट आपका आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू, डिक्रीज को हम लिखेंगे नेगेटिव से, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये देखिए, ये साइन होता है एक्चुअली कंसंट्रेशन का, ये साइन क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। डिक्रीज मीन्स कम हो रही है, और जो उसकी चेंज आ रही है कंसंट्रेशन में, पहले 5 थे अब 3 रह गए, या जितने भी थे वो कम हो गए, तो ये साइन होता है कंसंट्रेशन का। अगर कोई पूछे कंसंट्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ कंसंट्रेशन। अगर मैं यहां पर लिखता हूं ए, दिस इज ए, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, मींस इसको हमने दिखाना वही ए को मोल पर लीटर में। तो ये आ रहा है नेगेटिव मींस डिक्रीज, change in concentration of R for reactant upon delta T. This is the change in concentration of reactant. चले, तो अब अगर हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ, जब मैं लिख लेता हूं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट का केस लेते हैं, प्रोडक्ट्स का, तब हमने क्या करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, वहां होगी इंक्रीज, कि बढ़ रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स
नीचे टाइम इंटरवल, ये देखिए, तो रेट आपका क्या बनेगा, रेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज को हम दिखाते हैं प्लस से, चेंज कंसेंट्रेशन ऑफ पी फॉर प्रोडक्ट, नीचे टाइम इंटरवल हो गया डेल्टा टी। ये देखिए, अब इसमें क्या था, अगर मैं इसी को यहां पर निकालना होता, अगर हम यहां पर आ ले, इधर आ जाओ आप पहले, कि इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल, रेट इज इक्वल टू नेगेटिव, तो मैं यहां पर लिख लूंगा नेगेटिव, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो चेंज कितनी है इसकी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, तो आपने क्या करना, जब भी चेंज लिखनी हो तो फाइनल में से इनिशियल निकालते हैं, आपने निकालना है, ऐसे करना है कि ये C2 माइनस C1 होगा, चेंज इन टाइम कितना हो रहा है, वो हो रहा आपका T2 माइनस T1, अगर ऐसे लिख लो, तो यहां पर नेगेटिव ही लिखना आपने पहले, फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी है आपकी, जहां पर मान लो 3 हो चुकी है, इनिशियल कितनी थी 5 थी, तो आपका ये बनना था 3 माइनस 5 अपॉन टाइम आपका था, फाइनल टाइम है आपका 10 सेकेंड्स, इनिशियल कितना था 0 था, जब आप इसको सॉल्व करते तो ये रहता आपका, ये आ रहा था माइनस इंटू माइनस 5, ये माइनस हो जाना था, ठीक है, तो माइनस ऑटोमेटिकली वो प्लस हो जाना था, तो इसलिए तो यहां पर आप जब आप नेगेटिव लिखते हैं तो ये क्या बनता, -2 बनता, माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो जहां पर आता आपका 2/10, तो जो वही निकलती 1/5, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 0.22 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आता है। तो ये आपका रेट क्या निकला, फिर वो प्लस पे ही निकला, लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या था, ये दिखा रहा था आपकी वहां पर डिक्रीज कितनी आ रही, तो आपने ऐसे निकाल लेना था। अगर आप ये जहां पर लेते हो रेट ऑफ एक्शन क्या है, फिर आप लिख रहे हो चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो आपकी वही लिखनी है प्लस में, लेकिन आपकी फाइनल कंसेंट्रेशन क्या है, तो आपका जहां भी वही चला था C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये था प्रोडक्ट का, C2 कितना आपका 2 मोल, माइनस C1 कितना है 0, टाइम वही था 10 माइनस 0, तो ये आपका आता 2/10, तो ये रहता 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका और उसका रेट दोनों का सेम रहता, इधर आप ले लो चाहे आपने इधर लिखा, रेट आपका सेम रहा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस, अगर आप चाहे इसको रेक्टेंट का केस लो चाहे प्रोडक्ट का लोगे, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन वो सेम ही रहेगा, लेकिन बस इतना ही आपने देखना है कि अगर आप लेते हो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, देन देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि वहां पर कम हो रही है, तो उसको हमने दिखाना है नेगेटिव साइन से, नेगेटिव साइंस मीन डिक्रीज, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, change in the concentration of product per unit time, that is the rate of reaction in terms of product, तो तभी हम कहेंगे कि rate of reaction in terms of reactant is the decrease in the concentration per unit time, but in case of the product it is the increase in the concentration of the product per unit time, वहां पर इंक्रीज दिखाना था जहां पर डिक्रीज दिखाना था, लेकिन रहना दोनों केसेस में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन था वो सेम रहता है। क्यों, जितनी तेजी के साथ कोई चीज कम होती है उतनी तेजी के साथ वो बनेगी, जिस स्पीड के साथ कोई चीज कंज्यूम हो रही है उतनी स्पीड के साथ वो क्या आगे जाके प्रोड्यूस हो रही है। तो इसलिए हम कहेंगे जो रेट ऑफ कंजम्पशन that should be equal to rate of production. Rate of consumption is in case of the reactant होता है, rate of production in case of the product होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बनती है reactant आपकी खत्म होती है। तो आपका ये था rate of reactions। तो rate of reaction फिर एक बार आपको बता देता हूँ, rate of reaction को आपने ऐसे डिफाइन करना है, rate of reaction may be defined as the change in the concentration of the reactant or product per unit time, that is the rate of reaction।
In terms of reactant, it is the decrease in the concentration of the reactant per unit time. In case of the product, it is the increase in the concentration of the product per unit time. तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका पहला टॉपिक था. इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी. तो चलिए, अब रेट ऑफ रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं. पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं कर लेता हूं उसके ऊपर. आइए पहले टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. एक होता है पहला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा था इंस्टेंटेनियस. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो होता है टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ R and P. R for reactant, R P, OR, R P upon total time taken. तो अब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाते हैं जैसे डेल्टा C फॉर कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T. इसको डेल्टा से ही दिखाना है. अब आप इसको इन टर्म्स ऑफ जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ अगर आप रिएक्टेंट लेते हैं तो वही चीज बनती थी माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. दिस इज कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन. दिस डेल्टा मीन चेंज C फॉर कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा T. दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. हम क्या करते हैं, टोटल चेंज लेते हैं. इनिशियल कितनी है, फाइनल कितनी हो गई, ठीक है. तो वो होता था हमारा डेल्टा से चेंज इन कंसंट्रेशन. नीचे टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, कब स्टार्ट हुआ और खत्म कब हुई, वो हम देते हैं. बीच का नहीं देते, सीधा इनिशियल और फाइनल, ये टोटल होता है. अब वो दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है द रेट ऑफ रिएक्शन at a particular moment of a time, the change in the concentration at a particular moment of a time with respect to at a particular moment of a time, that is the instantaneous rate of reaction. It is the change in the concentration of reactant or product. तो मैं इस तरह लिखता, it is the change in the concentration at a change in concentration at a particular instant of time, particular moment of a time, instant of time, particular moment of time या instant of time, moment of time is called instantaneous rate of reactions. अब मैं जहां पर लिखूंगा instantaneous rate, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए. हम जहां पर ये ऐसे साइन डाल लेंगे, ये देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं जी. एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ अ टाइम होता है, जैसे जहां पर हम लिखेंगे लिमिट, लिखेंगे इसकी लिमिट T अप्रोचेस टूवर्ड 0, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. एक्चुअली इसको हम दिखाएंगे dc अपॉन dt. ये जो d होता है साइन, दिस इज द स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन dt, स्मॉल चेंज इन टाइम. और वो जो चेंज इन टाइम होना चाहिए कुछ सेकंड्स का होता है, ठीक है. 0 to 1 2 3 4 5 सेकंड्स जहां तक. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लो आपकी गाड़ी कहीं से चलती है,
जम्मू से जा रही है कठुआ तक, तो वो सफ़र मान लो आपका 100 किलोमीटर है, उसको लगता है 2 घंटे। तो हम उसको क्या करेंगे, हम 2 घंटे को हम उसको डिवाइड कर लेंगे, तो उसकी जो स्पीड निकलेगी वो निकलेगी 50 किलोमीटर पर आवर्स। 100 को 2 से डिवाइड करें, 2 से, तो 50 किलोमीटर पर आवर्स निकली। तो अब ऐसा तो है नहीं है कि गाड़ी आपकी हर बार 50 किलो पर आवर्स ही चल रही थी। हो सकता कई बार वो 120 किलोमीटर पर आवर्स चल रही थी, उसकी स्पीड थी। जो स्पीडोमीटर था उसका दिखा रहा था, कहीं हो सकता वो 10 किलोमीटर दिखा रहा होता, कहीं जाम भी आ सकता है, हो सकता कहीं 50 होगा, कहीं 40 होगा, कहीं 30 होगा। लेकिन वो हमने निकाली थी, उसको बोलते हैं एवरेज। टोटल जो उसने कवर किया डिस्टेंस डिवाइड कर दिया टोटल टाइम से। एक होता है इंस्टेंट मोमेंट, इंस्टेंट, जैसे इंस्टेनियस रेट हम लिख रहे हैं, वो आगे एक उसके साथ इंस्टेनियस स्पीड हम लिखते हैं कि जैसे मान लो गाड़ी आपकी 10 बजे चली थी, तो 12 बजे वो पहुंची थी कठुआ है, तो मैं देखूंगा 10:30 और 32 सेकंड्स के ऊपर वो जो स्पीडोमीटर की जो सुई थी, नीडल थी, वो कितनी दिखा रहे थे, वो होता है आपका इंस्टेनियस स्पीड, और जहां आगे इंस्टेनियस रेट। तो वो हो सकता है वो जो थे वो कोई 2-5 सेकंड्स के लिए आपकी बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट रही थी उस समय। तो वो जो उस समय स्पीड होगी उसकी, हो सकता है वो 63 किलोमीटर पर स्पीड दिखा रही थी, स्पीडोमीटर 5 सेकंड्स के लिए दिखाई, तो वही 5 सेकंड का जो स्पैन था, तो वो हम लिखेंगे टी, स्मॉल चेंज इन टाइम। और वो जो कंसेंट जो उस समय उसने स्पीड दिखाई थी वही थी आपकी उस समय, वो 63, वो एक पर्टिकुलर थी। वो होता है इंस्टेनियस और एवरेज में फर्क। तो चलिए यहां पर लिखा इंस्टेनियस रेट लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब होगा जो टी 0 की तरफ जाना चाहिए, टाइम जैसे बिल्कुल वो होना चाहिए, कम समय होना चाहिए इसके लिए। तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन और स्मॉल चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, इसको हम दिखाएंगे इन केस ऑफ रिएक्टर माइनस डी ऑफ, तो जहां पर हम दिखाएंगे आर, ठीक है, चेंज ऐसे दिखाना डी ऑफ आर अपॉन डी टी। स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द डिक्रीज, स्मॉल डिक्रीज, ये स्मॉल डिक्रीज, नेगेटिव मींस डिक्रीज, स्मॉल डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ अ टाइम इज इक्वल टू प्रोडक्ट के केस में प्लस डी ऑफ या पी इंटू डी टी। सिर्फ इतना ही फर्क है, जब आपने एवरेज दिखानी है तो उस समय जे आपने डेल दिखाना जे वाला, जब आपने इंस्टेनियस दिखाना रेट तो आपने ये वाला डी से दिखाना उसको, बस ये है। तो ये था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। चलिए अब इसके ऊपर अब मैं आगे जाके न्यूमेरिकल्स ले लेता हूं। तो ये था आपका रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए मैं अब ऐसा करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, जर्नल एग्जांपल। जैसे मैं लिखूंगा कंसीडर जनरल रिएक्शन। जैसे मेरे पास है ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी। इस समय स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्या है? दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द स्पीशीज। ये जो आपने स्पीशीज ली है ए बी, ये मेरे 2 रिएक्टेंट्स हैं और 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये स्मॉल ए, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए, स्मॉल b, this is the coefficient of b, small d, c, this is the coefficient of c, and small d is the coefficient of d। अब इसके लिए मैं रेट लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले मैं लिख देता हूं एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो इन टर्म्स ऑफ ये आपके क्या है, रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो रिएक्टेंट्स में आपने क्या करना है, इसमें जो कोएफिशिएंट होगा लेना आपने माइनस है, देखिए माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। लेकिन जो इसका कोएफिशिएंट होगा उसको आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो आपने करना जहां पर -1 अपॉन ए ऐसे कर देना, ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये आपने करना वही
जो कोएफिशिएंट था उसको डिवाइड करता 1 अपॉन बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट के केस में फिर वही प्लस 1 अपॉन सी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ये भी दूसरा प्लस 1 अपॉन डी change in concentration of D upon delta T. This is the rate of reaction and this is the average rate of reaction. तो अब आपने ऐसे दिखाना है इसको, जो कोएफिशिएंट होगा उसको उससे डिवाइड कर देना है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो रेट दिखाते हैं वो एक मोल के लिए दिखाते हैं, क्योंकि रेट का मोल पर लीटर पर सेकंड एक मोल। तो जहां पर आपके अगर जो ए स्पीशीज है उसका ये जो कोएफिशिएंट है इतने मोल्स हैं, तो हमने उसको ए करने के उसको हम उससे डिवाइड कर दिया। अगर मान लो ये 4 मोल थे तो उसका हमने ए करना था उसका, तो उसी को हमने डिवाइड कर दिया इससे। तो जी आया। अगर आपने लिखना इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, तब आपने लिखना इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ डेल्टा को चेंज करना है। सेम भाई उसी के लिए ऊपर वाले के लिए -1 अपॉन ए डी ऑफ concentration of A upon dt minus 1 upon B d of concentration of B upon dt is equal to plus 1 upon C d of concentration of C upon dt is equal to plus 1 upon D change in concentration of D upon dt, ये dt है, ठीक है। सॉरी इधर भी आपने डी करना, डी अपॉन डी। तो ये थे आपका एवरेज रेट, आपने डेल से दिखाया और नीचे आपने इसको डी से दिखाया। वो टोटल चेंज होती है पूरी रिएक्शन की, ये होती है स्मॉल चेंज एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ अ टाइम। तो ये फर्क है थोड़ा सा एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन वही होता है the change in the concentration of the reactant per unit time, that is the rate of reaction। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप करो। तो ये था। उसके बाद आप इसके वो लिख लेना कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, वहां पर होगी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, और नेगेटिव से दिखाना है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, और प्रोडक्ट के केस में इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। और वो मैंने बताया। उसके बाद आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं। पेपर में आपको इतना ही आता है कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, वहां पर आपने डेफिनेशन ही बतानी है और एक एग्जांपल ये दे देना, ठीक है। एवरेज हो सके कभी कभी एक नंबर का डालते हैं कि डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस समय आपको ये दिखाना है। तो चलिए अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं एक ले लेता हूँ, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर ही। तो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मेरे पास एक, मैं इसके लिए वो भी ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल भी ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, फिर उसके बाद मैं चलता हूं मेरे को। फॉर एग्जांपल बेटा देखिए, जैसे आपके पास है N2 गैस प्लस 3H2 गैस। पहले मैंने एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है 2NH3 गैस। इसके लिए मैं अगर रेट लिखना है तो रेट आप किसी में भी लिखो, चाहे एवरेज में चाहे रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट इज इक्वल टू, ये मेरे रिएक्टेंट्स है। तो इसके लिए इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो आपने लिखना है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, अब इसका है 3 है कोएफिशिएंट, इसको डिवाइड कर देना -1 अपॉन 3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, अगर प्रोडक्ट का लिखना है तो आपने लिखना 1 अपॉन 2, लेकिन कौन सा, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पर यूनिट टाइम। तो ये आपने रेट ऐसे लिखना है। तो रेट देखिए, रेट जब भी ऐसे लिखना है, एक होती फॉर्मेशन। अगर मैं यहां पर लिखूं कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो मैंने पता क्या करना था, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 वो होता है, उस समय मैंने दिखाना ऐसे डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पर यूनिट टाइम, बट दिस कोएफिशिएंट इज नेग्लेक्टेड, वो नहीं लेना।
ठीक है, वो नहीं लेना, ये आती फॉर्मेशन। ये क्या आगे फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन होती है अमोनिया। किसी चीज की अगर फॉर्मेशन ऑफ किसी भी स्पीशीज की निकालनी हो तो उसके लिए एक मैं फार्मूला बता देता हूं। एक होती फॉर्मेशन, एक होता रेट। रेट दिखाना तो आप ऐसे दिखाना, इसकी फॉर्मेशन को डिवाइड करना है जो उसका कोएफिशिएंट होगा। देखिए अगर आपने दिखाना है जैसे फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस, किसी के खत्म होना, किसी का कंजम्पशन और प्रोडक्शन दिखानी है, तो मैं जहां पर लिखूंगा कि फॉर्मेशन, डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ किसी भी स्पीशीज के इज इक्वल टू, वो मैंने लिखा है रेट मल्टीप्लाइड बाई कोएफिशिएंट। रेट को उसी के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वो डिसअपीयरेंस और उसकी फॉर्मेशन निकल जाएगी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना है तो रेट इज इक्वल टू उसकी डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट हो जाएगा। अगर आपने रेट दिखाना है तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो पूरी रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू वो बनेगा डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन भी इसको हम बोल सकते हैं, तो वो होगा डिवाइडेड बाई उसके कोएफिशिएंट्स। कैसे निकल जाता है, तो यही आपने यूज करना है। इसको थोड़ा सा नोट कर लेना और ये आपके आगे जाके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। इसको आप नोट कर लो। चलिए अब मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूं एक, जल्दी जल्दी, एक के बजाय दो लेंगे, तो उसको आपने नोट कर लेना है। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, मेरे पास आ रहा है जैसे कोई रिएक्शन है, इन गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन में क्या है, अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, मैं बस इतना लिखता हूं, गिवन रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर का होगी। टेम्परेचर वो क्या है, जैसे मेरे पास है अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर लिखना गैस भी लिख लो, गैस भी लिख लो, अगर क्या बन रहा है आपका, अमोनिया आपकी 4 टाइम 5 टाइम हमने लिया ऑक्सीजन, तो ये बन गया आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, 4 टाइम NO गैस, प्लस आगे 6 टाइम वाटर बनेगा, वो भी वाटर, वो भी गैस है, वेपर्स ना गैस है, 6 टाइम H2O। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ कोएफिशिएंट भी लगे हुए हैं, 4 5 4 6, 4 5 4 6। अच्छा, द कंसेंट्रेशन ऑफ, यहां पर क्या है, द कंसेंट्रेशन ऑफ NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, जो कंसेंट्रेशन आ रही है, चेंजेस फ्रॉम, मैं कोई भी ले सकता हूं, प्रोडक्ट में है 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, नहीं मैंने सीखा सिर्फ कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर, 2 किसमें चेंज हो रही है, 2 वो चेंज हो रही है आपकी, मान लो 1.2 से ये जा रही है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर इन, कोई सेकंड से ले लेता हूं अपनी मर्जी से, जितने भी आप ले सकते हो, 10 20 30, चलो इन 20 सेकंड्स, इन 20 सेकंड्स। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट
एक करना आपने पहला रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 दूसरा फॉर्मेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ या डिसअपियरेंस कर लो पहले, डिसअपियरेंस ऑफ किसी की बता लेते, चलो अमोनिया NH3। थर्ड फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O। तो ये आपने करना है, इसमें दिखाना है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी आपने दिखाना है, इनके रेट भी दिखाने हैं। चलिए अब हम पहले लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जो आपको दिया क्या है, देखिए पहले मैं वही लिख लेता हूं। पहले आप लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पर करने पड़ेगा रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा। अगर हम रेक्टेंट का केस लेते हैं -1/4 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। 1/4 क्यों लिखा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट था 4 इज इक्वल टू। अगर आप इस केस में लेते हो, किसी भी का भी आप निकाल सकते, रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखना किसी भी एक स्पीशीज को कंसीडर करके जिसकी आपको कंसंट्रेशन दी होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन दी होगी। दूसरा -1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि ये रिएक्शंस थे। अब मैं प्रोडक्ट पे आ जाता हूं, तो इधर का भी 4 है, तो ये आएगा +1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, वाटर का केस लेते हैं, उसका कोएफिशिएंट कितना 6 है, +1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखिए पहला मैंने निकाला रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर मैं ये देखूंगा कि किसकी दी है, जिसकी दी होगी, तो जहां पर दी है सिर्फ कंसंट्रेशन NO की, वो भी आपकी इधर से इधर चेंज हो रही है, लेकिन वो मैंने चेंज निकाली, इससे मुझे ये कंसिडर करना पड़ेगा जहां पर। तो फिर वो पहले मैं लिखूंगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO, तो वो कैसे, डेल्टा मीन चेंज, तो ये मेरे पास आ रहा है चेंज, ये देखिए बेटे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO वो कितनी है, वो है आपकी फाइनल, जहां से वो इधर चेंज हो रही है, क्योंकि बर्न किसमें है, इसमें लिखा कि चेंज हो रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में वो इंक्रीज कर रही है, 1.2 से 3.6 कर रही है, तो मैं जहां पर लिखूंगा 3.6 इंटू 10⁻³ -1.2 इंटू 10⁻³ इसको आप सॉल्व करोगे तो ये रह जाएगा आपका 2.4 लगता है मुझे, 2/4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आई आपकी डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब डेल्टा टी टाइम कितना लग रहा है उसका, वो लगा आपका 20 सेकंड, वो दिया हुआ है, इनिशियल 0 से 20 सेकंड लगे, तो हम जब डेल्टा टी लिख देंगे 20 सेकंड्स। अब हम जहां पर निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, किसी का भी लिख सकता हूं क्योंकि ये तो दिए नहीं मुझे, अब यही दिया तो इसलिए यहां पर लिख लूंगा +1/4 इंटू चेंज इन द कंसंट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड अभी आपने निकाला कितना जी, तो यहां पर आप कर सकते हो 2.4 इंटू 10⁻³ मोल, जहां पर सेकंड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन का है, ठीक है, इसका यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स, ये मोल लीटर इनवर्स, नीचे आएगा डेल्टा टी कितना 20 सेकंड्स। तो रेट इज इक्वल टू, मैंने ये वाला लिया 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चेंज इन कंसंट्रेशन मैंने निकाली थी, वो क्या थी, इसकी फाइनल में से
इनिशियल निकाले, जे चेंज आई थी 2.4 की चेंज आई थी, तो वो यहाँ पर लिख दिया। कितना समय लगा था उसको? 20 सेकंड, डिवाइड 20 सेकंड से कर दिए, ये डेल्टा टी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये हमारा निकल जाएगा। तो मैं इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये आया मेरे पास 2.4 डिवाइड किया 20 से 0.12 ये आया 0.12 इंटू 10⁻⁻³ मोल लीटर इनवर्स ऑफ सेकंड इनवर्स ऊपर चला गया। लेकिन मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना है, इसलिए मेरा जो रेट निकला है वो किसके इक्वल आया? वो आया 1.2 इंटू 10, इसमें +1 करूंगा तो वो -2 रह जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। क्या निकला? रेट ऑफ रिएक्शन। एक हो गया मेरा सॉल्व। इसको आप नोट कर लो, इसको मैं साफ कर देता हूं। और क्या पूछा गया? जहां पर 2 और चीजें पूछी गई हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा आ चुका है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया मेरा? इसको मैं लिख लेता हूं। तो रेट मेरा निकला था 1.2 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये रेट। अब ये पहला हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। दूसरा है डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो मैं जहां भी इसको कंपेयर कर सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट ले लूंगा इसको, इसके साथ कंपेयर कर दो, ये आएगा। तो आपको ये पता है कि -1/4 लिखो नहीं लिखो, ये इसलिए लिखना होता है। तो 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, वो है डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, वो था डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया जी। अब मेरा डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया पता क्या होगा? तो मेरा डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया होगा डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का खत्म होना, रेट ऑफ वो हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू रेट। 4 इंटू रेट क्या है? इधर लिख लो 4 इंटू रेट। अभी आपने निकाला था 1.2 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसको आप करोगे तो ये आपका आ सकता है 4 2 का 8 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आपका आ गया डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, एक आ गया, ये भी हो गया। अब रह गया ये वाला फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फिर आपने क्या करना? इसी को कंपेयर कर दो रेट से। तो पहले रेट निकाल लो, उसके बाद आपका आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, कोई भी चीज होगी। अगर रेट नहीं दिया, डिसअपीयरेंस दिया, तो आप इनको आपस में कंपेयर कर सकते हो। तो चलिए, आपने उसमें कोएफिशिएंट नहीं होने चाहिए, डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया जहां पर कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ऊपर चला जाएगा उसकी तरफ। अब हम ले लेते हैं आगे फॉर्मेशन ऑफ, इसको मैं साफ कर देता हूं जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है। तीसरा और आपके पास थर्ड पार्ट, उस पर पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मैं जहां से लिख लूंगा ये वाटर मेरा, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 इज इक्वल टू, वो होगा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका कोएफिशिएंट भी होना चाहिए। तो ये चीज इसको और इसको मैं कंपेयर करूं रेट को, तो मेरा 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू रेट इंटू 6। ये चीज मेरी बन जाएगी 6 टाइम रेट। तो अब आप रेट ऑलरेडी था 1.2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 6, ठीक है, 6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसको आप कर सकते हैं 6 2 का 12, 6 1 का
1 और 7 हो जाएगा, 7/2 into 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आपका निकल गया, वो था फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वो था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन डेल्टा टी। इसलिए आपने ये तीसरा पार्ट भी आपका निकल गया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपका इधर से निकल जाएगा। तो यही क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके। तो यही था आज का। तो ये था आज फर्स्ट डे था किसका, केमिकल काइनेटिक्स का, जो नया चैप्टर स्टार्ट किया। तो होपफुली आपको ठीक ही लगा होगा। अगर नहीं भी लगा हो तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे फ़ोन करके आप वो पूछ सकते हो। इसका जो स्टडी मटेरियल होगा वो मैं उसमें डाल दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।